Hello everyone. We are going to learn about the poem Keeping Quiet in this video. It is composed by Pablo Neruda. He was born in Chile and he was a Nobel Prize winner. In his writing, the most important aspect is that it is very simple and has a great depth. बहुत सरल भाषा में है और बड़ी गहराई की बात उन्होंने लिखी है. ये जो पोएम है ये इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है. तो लेट अस स्टार्ट विद इट. So first of all, I'm going to tell you the summary of the poem. In this poem, the poet wants to tell the importance of keeping quiet. He says that we are always in a hurry and we never find time for ourselves. If we remain quiet for a few seconds, that will give a lot of time, a better introspection for ourselves and better understanding for ourselves. That means we shall understand ourselves. We never try to see ourselves. We see others, but we never see ourselves. And secondly, it will develop a better mutual understanding with other human beings and with nature. So this will be a very simple solution for many of the problems. He says that for a few seconds there should be no movement all over the world. A time should be decided for that. And no machine should work, no movement should be there, no talks with each other. In fact, we should not try to move even our hands so much. So that is what he says. That will be a sort of strange language and we shall come in a situation which we never imagined. And then we shall find time for ourselves. He says that wars should also be stopped because wars do not give any solution because survivors are not there. So who will enjoy the life? It is better that we should remain quiet. We should try to see each other with happiness. We should get dressed up nicely and must come out of the house and must enjoy the life. That will be very good. But at the same time, the poet says that silence or stillness does not mean inactivity. Inactivity means death. But the poet does not advocate the death. He says that we should become still for some time. We should not do any work. And then he gives the example of the earth, that the earth works in all the seasons. But in winter, it seems that no life is there. Fog is there, snow is there, everything is so cold. And it seems earth is not working, but it is not so. Earth is always working silently. But when the spring comes, everything becomes so live. So that is what the poet wants to tell us, that we should become silent or still for some time. The central idea of the poem is that the poet stresses on keeping quiet. Just because keeping quiet and remaining harmless will be very helpful for fellow human beings and for animals and for environment. If we do not do many activities around us, that will help others also to live peacefully and to coordinate with ourselves. So that will be a better world to live. We are always in a hurry. In our hurry, we do many activities which harm others. So it should not be done. Being in hurry creates a lot of problem because we are always in a hurry. So we create a lot of problems for ourselves. So to avoid it, we should remain silent for some time to introspect ourselves, and that will help ourselves and others to make this world a better place to live. Now, let us learn the poem. So in the first stanza, I'm going to read it out and then we'll explain you. So in the first stanza, the poet says, now we'll count to 12 and we
विल ऑल कीप स्टिल। अब वो क्या कहते हैं कि कैसे होगा ये काम कि हम लोग स्टिल रहें, एकदम शांत रहें। तो क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे और फिर सब लोग एकदम से शांत हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, एकदम अनोखा क्षण होगा। अब सेकेंड स्टेंजा में है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कम से कम एक बार अर्थ के ऊपर, फेस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर एक ऐसा असामान्य सा क्षण होगा कि जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं, कुछ नहीं बोले। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, रुक भी जाए और अपना हाथ पैर भी, बैठ के अपना हाथ भी न चलाएं ज्यादा, वो भी करना है, मतलब एकदम शांत। In the third stanza, the poet says, it would be an exotic moment, without rush, without engines. In the third stanza, the poet says, it would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यानी कि एकदम अनोखा, एकदम अनयूजुअल क्षण होगा, एक्सोटिक मोमेंट होगा। कैसे कि जब कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई इंजन्स वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई इंजन, किसी भी तरह के इंजन की आवाज नहीं आ रही है, न गाड़ियां चलेंगी, न मशीनें वर्क करेंगी, तो बड़ा अनोखा क्षण होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, सब लोग एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एकदम अनोखा क्षण, बड़े ही असामान्य रूप से, स्ट्रेंज रूप से, अनोखे रूप से सब एक जैसे हो जाएंगे। और ये समझ लीजिए कि कोविड में हम लोग इस चीज को महसूस भी कर चुके हैं। फोर्थ स्टेंजा में बहुत ही सामान्य से शब्दों में पोएट बहुत अनोखी बात बोल रहे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन जो है, जो नॉर्थ में जो सीज रहते हैं, जहां पर बर्फ जमी रहती है, वहां पर जाकर के व्हेल्स को पकड़ते हैं, मारते हैं। मतलब एक तो ठंड की वजह से परेशान है जानवर, और फिर उसको दूसरे ह्यूमन बींग्स मारने को भी तैयार हैं। तो मतलब दोनों ही तरह से वो बच जाएगी, ठंड से अपने आप को नीचे छुपाए हुए है, और फिशरमैन के भी डर से, फिशरमैन का भी कोई डर कुछ समय के लिए नहीं रहेगा। तो ये भी एक उसके लिए नेचर के तौर पे उसके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। फिर उसके बाद, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मतलब जो नमक बनाते हैं उन लोगों के हाथ और पैर दोनों गल जाते हैं, और लेकिन क्योंकि उनको अपना ब्रेड अर्निंग करनी है, उनको अपना कमाई करनी है, मतलब पैसा तो कमाना ही है, उनको वही काम आता है। तो अब क्या होगा, अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे तो वो कम से कम अपने हाथ और पैरों की तरफ देख पाएंगे जो एकदम गल जाते हैं नमक में। वो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने को देख सके, अपने दर्द को महसूस कर सके। इन द सिंपल word, the poet has told such a deep aspect of life. In the fifth stanza, the poet says, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. यानी कि अलग अलग तरह के युद्ध होते हैं। ग्रीन वॉर मतलब कि जो जैसे पेड़ इतने काट रहे हैं या रहने के लिए जगह बना रहे हैं, यानी कि दुनिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट आवरसेल्व्स ओनली। तो वो भी कम हो जाएगा, कुछ क्षण के ही लिए, मगर कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लोग गैस की वॉर कर रहे हैं, यानी कि केमिकल वाली वॉर कर रहे हैं, फायर वाली वॉर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इतनी वॉर्स के बावजूद कोई सर्वाइवर्स ही नहीं रहते हैं, दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। तो जब कोई बचेगा ही नहीं तो जीवन कैसा, आनंद कैसा। तो पोएट का कहना यह है कि ये सब कुछ समय के लिए एकदम बंद हो जाना चाहिए, बल्कि लोगों को क्या करना चाहिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। मतलब ऐसे समय में लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को साफ सुथरे कपड़े पहन करके अपने घरों से बाहर आना चाहिए, अपने और लोगों से बात करना चाहिए, आसपास जो भी लोग हैं उनसे बात करना चाहिए, और इन द शेड डूइंग नथिंग, कम से कम छाया में थोड़ी देर बैठ करके शांत मन से बात करें, नहीं भी बात करें तो बैठें और कुछ भी ना करें उस समय।
तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा रिलैक्सेशन होगा मानसिक तौर पे लोगों के लिए, और हो सकता है वो अपने एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, जो नफरत है, वो कुछ समय के लिए भूल जाए। Now, in the sixth stanza, the poet says, "What I want should not be confused with total inactivity." मतलब उनका कहने का मतलब है जो मैं कह रहा हूँ, यानी स्टिलनेस की बात कर रहा हूँ, यानी शांत रहने की बात कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इनएक्टिविटी से। मतलब कोई भी इसको गलत ना समझे कि मैं एकदम इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, या वो या पोएट इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मतलब कि इनएक्टिविटी मतलब एक तरह से डेथ, तो ये नहीं करना है। इसमें केवल स्टिलनेस की ही बात कर रहे हैं। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जीवन क्या है, इसके जो इसको करना चाहिए, यानी सक्रियता, यानी कि मूवमेंट, यानी कि सक्रियता होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए शांत भी हो जाना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। नो ट्रक मतलब फ्रेज है, नो ट्रक मतलब हमारा डेथ से कोई संबंध नहीं है, वो तो अपने आप ही आ जाती है। हमारा संबंध किस चीज से है? अपने आप को शांत रखने से है, अपने जीवन को अच्छा जीने से है, ये ही हमारा जीवन से संबंध है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, मतलब देखिए सरल भाषा में कितनी सुंदर बात कही है। सिंगल माइंडेड हम किस लिए हैं? एक ही बात हमारे दिमाग में रहती है कि बस चलते रहना है, काम करते रहना, चलते रहना है, काम करते रहना है। ये सिंगल माइंडेडनेस है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. उनका कहना ये है कि ये जो हम चलते रहने की हमेशा बात करते हैं, तो हम कभी अपने को समझ ही नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि एक बार को अगर शांत होकर कोई बैठ जाए, तो ये जो इतना अथाह दुख है लोगों में, हर समय दुखी रहते हैं, किसी न किसी वजह से दुखी रहते। क्यों? क्योंकि काम करते 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 वो खुद परेशान हो रहे हैं और आउटपुट हो सकता है कम मिल रहा हो। तो एक बार शांत होकर बैठ जाए, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, और इस ह्यूज साइलेंस से, यानी कि सब तरफ वो साइलेंस अगर हो जाएगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हम लोग को दुख क्यों रहता है कि हम कभी अपने को नहीं समझ पाते हैं। हम दूसरों को देखते रहते हैं और भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाते, अपने को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए अगर शांत हो जाए तो शायद ये संभव हो जाए, हम इस दुख से दूर हो जाएंगे। ये हमारे पास दुख नहीं रहेगा कि हम काम करते करते एकदम मरने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और हम अपने आप को स्वयं ही थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम काम करते करते ही मर जाएंगे, या तमाम तरह की बीमारियां जो आ जाती हैं वो भी इसीलिए कि हम ओवरवर्क्ड रहते हैं, काम करते रहते हैं। In the seventh stanza, more interesting thing is there. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. उनका कहना यह है कि ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ, शायद पृथ्वी से हम इस बात की शिक्षा ले सकते हैं। कैसे? कि पृथ्वी हर समय काम करती रहती है। जाड़े में क्या होता है, एकदम सब डल हो जाता है, एवरीथिंग सीम्स डेड, एकदम लगता है कि कुछ है ही नहीं, एकदम हर जगह फॉग है या बर्फ गिरी हुई है, लगता है कि कहीं जीवन है ही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सब एकदम लाइव हो जाता है, फिर स्प्रिंग आता है, फिर एकदम सब जीवंत हो जाता है, एकदम लाइवलीनेस आ जाती है। तो यही मतलब है कि थोड़ी देर के लिए अगर शांत हो जाए तो हो सकता है हम रिवाइव कर जाए। रिवाइवल ऑफ आवरसेल्व्स विल बी देयर इफ वी बिकम साइलेंट फॉर समथिंग। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप एकदम शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। यानी कि अब चलो, ये टाइप मतलब पूरा समझा दिया, पोएट ने पूरी बात समझा दी कि क्वाइट होने के क्या फायदे हैं। एंड में वो कह रहे हैं ठीक है, अच्छा मैं 12 तक गिनता हूँ और ठीक है आप शांत हो जाइए और मैं चला जाता हूँ।